थे। सोशल मीडिया पे आना बहुत मेरे लिए पॉजिटिव रहा है। Of Doordarshan, we are wishing once again our viewers a very, very happy Deepavali. I'm Sakal Bhatt and with me is my colleague Rama Tyagi. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली जो कि पर्व है अंधकार से प्रकाश की ओर, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर और तमाम जितनी भी ऊर्जा है उसे एक सही दिशा में लगाने की ओर। किस तरह से देश भर में दीपावली मनाई जा रही है, क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने और किस तरह से प्रधानमंत्री के संकेत को सकारात्मकता के साथ देश भर में लिया जा रहा है, ये अपने 1 घंटे के कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे। Yes, in the next 1 hour, we're going to get you live reports from across the country, from east to west, from north to south. We're going to also talk about that very, very special message reaching out once again, in fact, to the Jawans today. Prime Minister on this very special broadcast, not only will get you all those reports, but also remember Prime Minister's message on the occasion of Festival of Lights, extending greetings to Jawans. Prime Minister Modi today said that his Diwali is incomplete without Jawans. Reaching out to the nation, remember Prime Minister has also urged all of us, you, me, everyone, that light a diya wherever you are, light a diya in honor of our soldiers. As we speak, these soldiers are guarding our frontiers and keeping up the tradition of spending Diwali with forces, whether it is Gurez sector to Siachen. This year, Prime Minister Modi spent his Diwali again at a strategically significant, border outpost, Longewala border outpost in Jaisalmer in Rajasthan. बिल्कुल, प्रधानमंत्री अपनी हर दिवाली जवानों के साथ मनाते हैं और आज भी उन्होंने इसी अंदाज में दिवाली मनाई और सरहद पर हमारे उन निगहबानों के पास पहुंचे जिनकी वजह से आज हम इस त्योहार को चैन से मना रहे हैं, एक सुनिश्चित मनस्थिति के साथ मना रहे हैं, क्योंकि वो सीमा पर, सरहद पर दिन रात जागते हैं, तब हम चैन की नींद सो पाते हैं। वो वहाँ पर तमाम अपने जो भावनाएं हैं उनको देशभक्ति की भावना में जोड़कर लगातार सीमा पर सुरक्षा करते हैं और इसी वजह से हम आज सुरक्षित हैं। और प्रधानमंत्री ने इसीलिए कहा कि आओ जलाएं एक दिया अपने जवानों के नाम, सैल्यूट टू सोल्जर्स। तो किस तरह से प्रधानमंत्री के इस संकेत को, इस संदेश को देश भर में लिया जा रहा है, हम बताएंगे अपने रिपोर्टर्स के जरिए और हम दिखाएंगे अपने न्यूज रूम के दृश्य भी। किस तरह से हम दिवाली मना रहे हैं और किस तरह से हमारी दिवाली भी सैनिकों को समर्पित है, किस तरह से उनके नाम का दिया जलाया जा रहा है। और दुइना हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़ी है, उनके पास चलते हैं। Let's quickly go across to Duina, my colleague joining us live from Guwahati. Our first stop over in this special broadcast is Northeast Guwahati. Duina, over to you. So Guwahati is also decked up today, but also taking forward the message of Prime Minister Narendra Modi, light a diya, saluting our soldiers. Duina. Right, Shakal, very happy Diwali to you and Rama and all our viewers first. And yes, of course, like any other state, Assam is also celebrating Diwali, but this time, yes, a green Diwali celebration can be seen in Guwahati and other parts of Assam. And of course, the Prime Minister's message on the eve of Diwali to light a diya for the soldiers, and it's a special moment he spent with the soldiers. It's a boost to the soldiers, of course, because Diwali is the time when we celebrate with our families, but these soldiers are staying and protecting our borders, securing us, so definitely a salute to them. Yes, of course, we have with us some senior citizens. Let us know from them the message that has been given by Prime Minister Narendra Modi. So we have a senior citizen with me. So Prime Minister Modi, he always go to the to meet the soldiers on this special occasion, Diwali. Last year also he went to Siachen. This year he has gone to Jaisalmer, Rajasthan. So what the message that Prime Minister Modi gives to the people to respect, to pay homage to the soldiers that are protecting our country. So what you want to say as a senior person? Prime Minister Modi has done a great job by going to the army people, because it is such a great day that it's a day of light and joy in which Lord Ramachandra lit lamps
in Ajodhya after winning Sri Lanka. So this is a great, it's a day of celebration with joy and enlightenment, and therefore we are joining him in celebrating this day. And our game village is a mini India in which people of all parts of the country They stay together. They speak different languages apart from local languages, English, Hindi, all languages of India. So we call it a mini India, and people here are living in unity, peace and friendship, in harmony, and therefore this is we consider to be an ideal village in Eastern India. Well, thank you. Well, Shakal, one more thing I would like to add here, because the Prime Minister Modi has been appealing everyone for the vocal for local, and yes, we have to mention it here that the local artisans, this time the state government is giving priority to the local artisans. They are using the diyas made by the local people out here. Even Chief Minister yesterday went to buy the Mittika diya, that is clay diyas. So yes, this is all what we are having here in Guwahati, in rest of the Assam. Shakal. Yes, but also keeping in mind precautions, also keeping in mind frequent hand washing, masking and social distancing. That is very important. There has been a lot of emphasis by the Prime Minister and by the ministry concerned also that festivities, amidst all these festivities, containing COVID is also very important. COVID protocols, adherence to COVID very protocols. True. Right, Shakal, wherever because in Assam, along with Diwali, Kali Puja is also being celebrated. Also in all the pandals, not exactly pandals, the permanent, the temples of Kali, Goddess Kali, there also we have seen that all the protocols have been maintained. They are maintaining social distancing, then sanitizers being used, and mask is also being used by the priests and rest of the devotees. Shakal. Ji. Doina, we'll have to just, in fact, shift our focus to our newsroom. But we're requesting you to stay there. We're going to come back to you in a moment from now. और अभी हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि दूरदर्शन किस तरीके से दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं. Well, it's business as usual for us. We are working, but then we are also here lighting that very one special diya for our soldiers. Our colleagues are going to join us in a while. दिवाली की खुशियां वर्क प्लेस पर भी मनाई जा सकती हैं, और किस तरह से जो इस बार की सकारात्मक दिवाली है, दुईना ने जिस तरह से बताया है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा कि वो सैनिकों के पास गए और उन्होंने कहा कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर एक जो परिवार है, देश रूपी परिवार है, उसके प्रतिनिधि के तौर पर भावनाएं लेकर, शुभकामनाएं लेकर और बहुत बड़ी सपोर्ट सर्कल, बहुत बड़ी एक भावनात्मक आधार जब हमारे सैनिकों को ये पता लगता है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है, दिवाली मनाते हुए पूरा देश शुभकामनाओं में अपने सैनिकों को याद रखे हुए है, वो बेहद महत्वपूर्ण होता है. और किस तरह से सैनिकों के नाम दिया जला रहे हैं डीडी न्यूज के न्यूज रूम में हमारे न्यूज रूम के सिपाही, यही हम आपको दिखाते हैं. आइए चलते हैं गौतम और ममता के पास. धन्यवाद सकल और रमा, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को भी दीपावली की, और हमारे सभी देशवासियों को भी जो डीडी न्यूज़ के जरिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं. दीपावली में जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि एक दिया जवानों के नाम जरूर जलाया जाना चाहिए, तो हम भी यहाँ पर डीडी न्यूज़ के न्यूज़ रूम में हाजिर हैं, अपने दर्शकों के लिए खबरें तैयार कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जवानों के नाम एक दिया भी जला रहे हैं. गौतम मेरे साथ हैं. गौतम, शुभकामनाएं देंगे. बिल्कुल, खासकर हमारे देश के जवानों को, जिनकी आज हमने दिन भर तस्वीरें भी देखी हैं और उनको आपके दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं. कहां कहां देश के कोने कोने में उन्होंने दीपावली मनाई है पूरे हर्षोल्लास के साथ. आप लद्दाख की बात कर लें, -20 डिग्री सेल्सियस वहां पे तापमान चला जाता है, 17,000 फीट की ऊंचाई पर. वहां पर भी पूरे जोशो खरोश के साथ दिवाली मनाई गई है. तो एक दिया हम उनके नाम जरूर यहाँ भी जलाएंगे. हालांकि कुछ रिस्की भी हो सकता है, स्मोक अलार्म बच सकता है, लेकिन नहीं, इतना धुआं नहीं आएगा. चलिए, ये दिया हमारे जवानों के नाम. थोड़ा सा दूर हो जाए. चलिए, ये दिए भी आप गौतम जला सकते हैं. कैंडल्स भी हम जला सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. और यहाँ पर दिए जलाकर हम डीडी न्यूज़ के न्यूज़ रूम के जरिए
हमारे सभी दर्शकों से मुखातिब हो रहे हैं। ये दीप पूरे देश और देशवासियों के लिए और विश्व भर के लिए हम ये शुभकामनाओं के दीप जला रहे हैं, ताकि ये दीप वो उम्मीद जो बेहतर भविष्य के लिए, सुरक्षित भविष्य के लिए सभी विश्व कामना कर रहा है। भारतवासी पूरे विश्व में फैले हुए हैं और आज दीपावली के मौके पर वो दीपोत्सव के जरिए ये रोशनी, उम्मीद की पूरे विश्व में फैला रहे हैं। तो ये दीपोत्सव जो इस वक्त हम डीडी न्यूज़ के न्यूज़ रूम में हम दीपावली के लिए रोशन कर रहे हैं। डीडी न्यूज़ हमेशा अपने दर्शकों के साथ हर त्योहार में जुड़ा रहता है और दीपोत्सव के जरिए भी हम ये विशेष पहल कर रहे हैं, क्योंकि काम कभी रुकता नहीं है और डीडी न्यूज़ तो 24 घंटे पूरा साल अपने दर्शकों के लिए काम करता रहता है। तो हम भी दीपावली की इस शाम में विशेष रूप से न्यूज़ रूम में आए हैं ताकि काम भी चलता रहे, लेकिन दीप प्रज्वलन भी होता रहे। हमारी और आपके गौतम सबकी भावनाएं तो हैं ही दीपावली को लेकर और जवानों के प्रति सम्मान को लेकर, लेकिन हमारे साथ जो न्यूज़ रूम में लोग मौजूद हैं उनके भी कुछ बाइट्स लेते हैं। आइए बात करते हैं इनसे भी और जानते हैं कि जो यहाँ पर न्यूज़ रूम में काम कर रहे हैं उनका आज के इस दीपोत्सव को लेकर उनके क्या विचार हैं। आइए वो विचार उनसे भी साझा करवाते हैं। विनोद जी, आप क्या कहेंगे आज के इस दीपावली को लेकर? फेस्टिवल ऑफ लाइट है और लोगों के लिए ये तो पूरे विश्व भर में जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी रहते हैं सब जगह पर 2 महीने पहले से ही दीपावली की शुरुआत कर देते हैं। साफ़ सफाई घर में होता है, खुशियों का माहौल होता है और इस लाइट और ये जो दीपक है ये ज़िंदगी में उतारें, उनके उजाला हो, इसको लेकर करके वो पूरे हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाते हैं और यही हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। जी, यानी शुभ दीपावली सबके लिए। आप क्या कहेंगे? और बिल्कुल कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की कि आप सेना के जवानों के लिए एक दीपक ज़रूर जलाएं और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि दीपावली का जो प्रकाश का जो पर्व है, सेना के साथ साथ पूरी दुनिया में जो कोरोना का संक्रमण है उससे भी हम जल्द से जल्द उबर सकें और ये प्रकाश का पर्व निश्चित तौर पे सभी लोगों की उम्मीदों को और ज़्यादा बढ़ा सके और अपनी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में और प्रकाश और वो बेहतर तरीके से अपनी समस्याओं से वो उबर सकें। यानी ये एक ऐसा पर्व है जिसमें हम शुभकामनाएं देते हैं। शुभकामनाएं सबके लिए, सबके खुशी, सबकी समृद्धि के लिए। सब खुश होंगे तभी तो देश खुश होगा और विकास कर पाएगा। इसी त्योहार की चमक, इसी त्योहार की जो रोशनी है वो सबको गौरवान्वित भी कर रही है और सबको खुश और सुखी भी कर रही है। आइए, हमारे साथ एडिटर इन चीफ भी है यहाँ पर मनीष जी, आइए उनका भी विचार जानते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा न्यूज़ रूम दीपों की रोशनी से इस बार रोशन है। मनीष जी, आप क्या कहेंगे? First of all, happy Diwali to all the viewers of DD News and DD India. And it's a very different Diwali that we are celebrating this year in the context of the COVID-19 pandemic. Going with the Prime Minister's call to light a lamp for the soldiers, I'd say we should all light a lamp for our COVID warriors also. With that, I think yes, it's a great atmosphere today in DD Newsroom, and we wish all our viewers a very happy and prosperous Diwali. थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि शुभ दीपावली की शुभकामनाएं हमारे सभी दर्शकों के लिए, सब काम करने वाले लोगों की ओर से आ रही हैं। लेकिन हमारे साथ यहाँ कुछ और लोग भी हैं न्यूज़ रूम में, आइए उनके भी विचार जानते हैं। And our newsroom is looking We have Mark absolutely Lynn with wonderful. us, Sakal. Yes. And Mark Lynn, our very famous English anchor. Let's take his views. Mark, you celebrate Christmas with such good zeal. What is your thoughts on Deepavali? Well, I think Diwali is really the festival of our country. It's celebrated by everybody across religions. It's not really just, a Hindu festival, and that when we look at the lights, that's a sign of us, human beings, all, lights sort of like uniting one another when we see them all together. So that's one way of looking at it. And it brings brilliance and brightness into our day. We know that we are going through a pretty bad time because of COVID. And this is clearly a sign of brightness and brilliance. And let me just wish everybody, everyone in our country and the world, brightness and brilliance in all their endeavors for Diwali. Indeed, and rightly you said that the times are different this time. It's the COVID times, but still the zeal is still there. And the way we have lit up our newsroom, our zeal is also very much evident, right? So we also have Aswarji here.
and well, he's our editor, so let's take his views also. Azwar ji, आपको हम हर बार ईद मुबारक बोलते हैं, इस बार आप हमें दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। पूरे देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। ये सिर्फ बाहरी अंधकार को मारने का जरिया नहीं है, एक त्यौहार नहीं है, पर्व नहीं है, ये बल्कि अपने अंदर के भीतर का जो अंधकार है उसे मारने का पर्व है। यानी कि जो है दीप जलाकर हम खुशियाँ मनाते हैं, लोगों को जो है मुबारकबाद देते हैं, मिठाइयाँ खिलाकर लोगों को मुबारकबाद देते हैं। यानी ये जो है अंधकार पर दीपों का पर्व है। बहुत अच्छी बात कही है आपने। और इस बार के पर्व को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि रंग कुछ अलग है, एहसास कुछ अलग है। सकल और रमा वो इस वजह से भी कि इस बार प्रदूषण को देखते हुए पटाखों को नहीं जलाया जा रहा, सही मायनों में रोशनी का पर्व है ये। ओपी यादव हमारे साथ हैं। ओपी, दीपावली की शुभकामनाएं। आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं और सभी देशवासियों को दूरदर्शन न्यूज़ की तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। आपने जैसे बताया मैडम कि इको फ्रेंडली दिवाली मना रहे हैं, प्रधानमंत्री का जो इको फ्रेंडली दिवाली मनाने का आह्वान है, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने का जो मामला है, पूरे देश की जनता इसको मना रही है। और यही वजह कि इस बार 11 करोड़ गोबर के दिए जलाए जा रहे हैं पूरे देश भर में। तो पहले ये बताओ, आपने इस बार मिट्टी के दिए खरीदे? हमने मिट्टी के भी खरीदे, लेकिन गोबर से बने दिए हमने खरीदे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इको फ्रेंडली दिवाली स्वदेशी उत्पाद को अपनाने की जो पहल की है उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और ये कहीं न कहीं एक देश की जनता का जो प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास है वो साफ तौर पर झलकता है इस दिवाली पे, आप देखेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये इको फ्रेंडली दिवाली यानी कि वो दिवाली जिससे कि हमारे यहाँ के स्थानीय शिल्पकारों को, कारीगरों को भी रोजगार मिले। हम खरीदारी तो करनी ही है, तो क्यों ना खरीदारी इस तरीके से की जाए कि उन लोगों को भी काम मिले। हमारे साथ मुकेश शुक्ला भी हैं। मुकेश, आज की इस शाम जब घर पे सब लोग इंतजार कर रहे होंगे कि भाई आइए सब मिलकर परिवार के साथ दिवाली मनाएं, हम और आप यहाँ काम कर रहे हैं, क्या है एहसास? तो बिल्कुल खास एहसास होता है हमेशा ममता जी, और काम जो है वो सबसे ज़रूरी है आपका, क्योंकि जो लोग हमारे को देख रहे हैं, जो हमारे व्यूअर हैं, उनको पता लगना चाहिए कि दुनिया में माहौल क्या है। और जिस तरह से आज हम गए थे, अभी हमने इवेंट्स भी कवर किए, तो लोगों के अंदर एक अच्छा सा माहौल है। उनको लग नहीं रहा है कि दिवाली में अगर बहुत ज़्यादा बम फोड़े जाएँ तो ही दिवाली मनाई जा सकती है। जिस तरह का भी हमने जाकर के देखा कि बच्चों ने खुद कहा कि हमें फायर क्रैक्स नहीं करने हैं, क्योंकि पोल्यूशन का लेवल जिस तरह से बढ़ा हुआ है, और साफ तौर पर इको फ्रेंडली जिस तरह से ओम प्रकाश ने बोला, उसको लेकर के काफ़ी मुहिम है। और कोविड के अंदर इको फ्रेंडली जितना माहौल तैयार किया जाए उतना अच्छा है, और काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिला। कहीं भी किसी भी तरह से कमी दिखाई नहीं दे रही उत्साह में। बिल्कुल, कोरोना की वजह से मुश्किलें जो भी हों, लेकिन हम ये मानते हैं कि त्योहार या पर्व जो हमारे हैं वो हमारे समाज में एक दूसरे के बीच सौहार्द बढ़ाने में सहायक होते हैं। इनसे भी जानते हैं आज की शाम ऑफिस में काम? जी बिल्कुल, क्योंकि काम है, ऑफिस है, जैसे पुलिस वाले कर रहे हैं, सेना है, हमारा भी काम है, हम वो कर रहे हैं। सभी को सबसे पहले तो दिवाली की शुभकामनाएं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि कोरोना और साथ ही साथ पोल्यूशन जो बहुत बड़ा मुद्दा है फिलहाल, उन दोनों को देखते हुए सतर्कता से सभी दिवाली मनाएं। लेकिन एक बात बताओ, नॉर्मली हम देखते हैं जो यंगस्टर्स होते हैं उनके लिए दीपावली के अलग मायने होते हैं। कुछ ऐसे मायने होते हैं कि लेट्स पार्टी टुगेदर, लेट्स गो आउट। इस बार तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके फ्रेंड सर्कल में सब लोगों को क्या एहसास है इस बार दीपावली के? फीकी है दिवाली बिल्कुल, बट ऐसा नहीं है, सब परिवार वालों के साथ में बना रहे हैं। और नहीं तो घर पे कम लोगों के बीच, लेकिन फिर भी लोग हैं जो बिल्कुल दिवाली मना रहे हैं, हर्षोल्लास से मना रहे हैं, ऑफिस में, घर में। एक और बात जानना चाहूंगी, क्योंकि मैंने कई फैमिलीज में देखा, इवन हमारी फैमिली में भी ये हुआ है कि हम ऑनलाइन सारे फ्रेंड्स से हमारा गेट टुगेदर हुआ है। ऑनलाइन एप्स के जरिए हम एक दूसरे से चैटिंग की है, हैप्पी दीपावली विशेस की हैं, कुछ घंटों तक गपशप भी हुई है। आप लोगों के साथ भी ऐसा है? बिल्कुल, हम कई स्काइप कॉल्स हो गए, बाकी जितने भी व्हाट्सएप कॉल्स हैं, आजकल इतने ऑप्शंस हैं ऑनलाइन मिलने के, बात करने की, तो बिल्कुल हम उसके थ्रू भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई मौजूद नहीं रह सकता आपके साथ फिलहाल, और पार्टीज़ तो बिल्कुल नहीं मना सकते हम। तो हाँ, उसके ज़रिए हम ज़रूर मिल रहे हैं और बातें कर रहे हैं और दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे साथ कई लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, और आपको भी हैप्पी दिवाली। और ये ज़रूर कह सकते हैं कि काम नहीं रुकते हैं, लेकिन इस बार की दिवाली आप इसको फीकी कहें या आप इसको ये कहें कि इस बार की दीपावली थोड़ी शांत दीपावली है। इस शांति में भी छिपी है वो खुशी या वो एहसास कि सब लोग एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ मिलकर दिल में सद्भाव रखकर आगे बढ़ें। यही है दीपावली का एक संदेश, सकल और रमा, which is the message of Deepavali to the whole nation, that let's celebrate it with the feeling of togetherness. Yes, this is the Deepavali, the festival of lights, and we do hope that this festival would lit
would light up the hopes of better future, corona-free future for the whole world. Sakal and Rama, back to you. Right, Mamta and Gautam and our entire newsroom, looking fantastic, looking so bright, lit with diyas there. And in fact, Rama, we have to quickly shift our focus to 122 Battalion Headquarters, CRPF here in National Capital. Urmilesh and Vishal Baristow, they are joining us live from there. Vishal, especially taking a cue from Prime Minister's message that we are so proud of our Jawans as we celebrate our Diwali with our near and dear ones. Let's spare many thoughts and that one special diya in their honor, saluting their whaler. I'm going to quickly hand it over to you. Let's show the viewers of Doordarshan how Diwali is being celebrated in that particular CRPF headquarters, जहाँ से आप हमारे साथ live जुड़ रहे हैं, आप और उर्मिलेश. Over to you. Sakal, first of all, I wish you a very happy Diwali to you and Rama and all my friends in the newsroom, as DD News is celebrating Diwali here at 122 Battalion, which is there in Delhi, and the motto of CRPF is service and loyalty, seva or nishtha. And as you can see, it's a beautifully decorated place here, and they've already lit lamps, one lamp, as the Prime Minister said, for the Jawans, and there you can see the lamps have been lit. And it is not only here, all the places the Jawans have lit lamps here. Let me show you. There they are. Every Jawan, every officer has lit a lamp, and there you can see the earthen lamps. So the new norms are being followed properly. Remember, we have to follow all the norms of COVID. We are here, everybody is putting on a mask, and also they are maintaining social distance. Now I will go back to the commandant of 122 Battalion. He and his wife, she's looking very pretty. First of all, the commanding officer, how are you celebrating Diwali? And this is something very new in the new normal. Yeah, first of all, I would like to wish Diwali to the all countrymen who are listening to us and watching us. This being a new times where we are having this COVID and the pollution. The new norm says that the social distance, the masks and the sanitizers, we are maintaining all that, and the pollution doesn't allow us to fire crackers and all though. So in this way we are celebrating Diwali by lighting the lamps and diyas, and with the dance and then the fruits and the sweets for all the Jawans. This is our family. The unit is a family. It's a bigger family than the family that they have at their home. And in the similar fashion, the companies which are deployed in the interior, they are again having a small family, and we all consider ourselves to be a big family, and we enjoy among ourselves. So there you heard from the head of the family, and let's go to the lady also. She is looking very pretty in red dress. How do you celebrate Diwali in this campus, and what makes you so comfortable and so happy to be with all of them, because this is mini India? Yeah, it is very true that this is mini India, and most of the time we are away from our husbands, because most of the time they are in field areas, and we get very less time with them to celebrate these kinds of festivals. So whenever we get time with our Jawans and everyone, and we make sure that we'll celebrate as if you have seen that many of the Jawans don't have a family right now here. Okay, so Vishal, we want them to be comfortable, yes, Rama. just to feel like. बिल्कुल विशाल, बेहद खूबसूरत दृश्य विशाल ने भी दिखाया, और जिस तरह से जो हमारे देश के सैनिक हैं, सीआरपीएफ के लोग हैं, उनका जिस तरह से मनोबल बढ़ा हुआ है. लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रथा होती है मुहूर्त ट्रेडिंग की, जो कि शुरू हो चुकी है. सीधे आपको वहीं ले चलते हैं. Every year on Diwali occasion, they have Muhurat trading, which is on a particular good Muhurat, as they say in Hindu calendar. On the Diwali day, the Gujarati and Marwadi traders closed their book. Earlier, what we call financial year was not specified by Government of India, even Britishers. So the Gujarati and Marwadi traders used to close their book today on the Amavasya day of the month Aso. And tomorrow on the Kartik month, they will open their new books. That's why this was a very important day for most of the business community in India. And even now that tradition is on, although our financial year has now gone from April 1 to March 31, but still this practice goes on. It's a very important day. And today's Sauda, today's trades get settled tomorrow. That is like
last year, which is today, will get settled in next year, and that's why they used to close their books today and take all the open saudas tomorrow, and that is called Bestu Varas or New Year. And that's why many Gujaratis, you might hear Sal Mubarak and Happy New Year, is because of the end of the year getting over. It's called Vikram Samvat. India Hindu calendar has two Samvats, two type of calendar. One starts in Chaitra, 1st of Chaitra, and the other starts on Kartik. Yeah. This, what starts on Kartik that year, is called Vikram Samvat, and it's slightly older. I think it's 2077 number Samvat that is going on, or starting tomorrow. But effectively, all the Gujaratis, all the Marwadis who invest in trades, they look at from Samvat to Samvat. In some ways, this last Samvat has been very, very tough for the entire world. And world has faced it with tremendous gumption. Of course, India has come out even better. And what index was last year at this time, it has actually gone up. Today also index has gone up almost 0.8%, which is almost 300 plus points. It shows the resilience that India has shown despite the worries everyone had, all experts had about India not being able to cope up with COVID. I think India has done a tremendous job of saving lives, ensuring all its doctors, all its sanitation workers, all its government officials have done wonderful job for India. Of course, there are difficulties in India, across the world, but the government has ensured that the lowest of low, the poorest of poor has been taken care by giving free food and also some amount in their Jan Dhan accounts, of course, for SMEs, for Rediwalas, everyone. The government has had some ways to sort of take care. And this is pretty much the largest food program in the world now, with 80 crore or 800 million people being provided free food for almost 9 months. And for me, that is the strength of India, that India has somehow come out tremendously well, even by providing medicines to the rest of the world, and also by being elderly statesmen compared to what other countries have done in terms of irresponsible behavior during this period. India has done tremendous job in terms of its responsibilities. And so for me, this is just the beginning. New geopolitics is now taking shape, and Sensex will continue to reflect. तो मुहूर्त ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है और बेहद महत्वपूर्ण होती है। जब हम व्यापारी वर्ग की बात करते हैं, ये 1 घंटे का समय बेहद अहम होता है प्रॉस्पेरिटी को देखते हुए, समृद्धि को देखते हुए, और नए साल में किस तरह से जो ट्रेड है, व्यापार है, उसको देखते हुए, और इस लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और जिस तरह से सकल प्रधानमंत्री ने आज कहा कि हम देश भर में जब दिवाली का त्यौहार मनाते हैं तो हर आदमी समृद्धि की कामना करता है, हर आदमी धन धान्य की कामना करता है, लेकिन हमारे जो देश की समृद्धि है वो सुनिश्चित होती है, हमारी देश की जो सरहद है वो देश के द्वार है, और वहां पर निगहबान हमारे जवान, हमारे सैनिक, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे सरहद पर हो, लगातार डटे हुए हैं, और वो असली हमारे देश की समृद्धि है, सुरक्षा है, उसको सुनिश्चित करते हैं। तो किस तरह से हमारे सैनिकों का, जवानों का, हमारे सीआरपीएफ के जवानों का मनोबल ऊंचा है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो दिल्ली में सीआरपीएफ के कैंप में मौजूद हैं, वहां पर हम आपको सीधे ले चलते हैं। जी, उर्मिलेश हमारे साथ मौजूद हैं। उर्मिलेश, किस तरह से दीपावली का त्योहार, दीपावली इस बार बड़े चैलेंजिंग माहौल में है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज मनोबल ऊंचा किया है देश भर के साथ जवानों का भी, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, किस तरह का उत्साह आप देख रहे हैं, और मनोबल में कितनी वृद्धि है? जी रमा और सकल, सबसे पहले तो आपको भी दीपावली, आपको और हमारे तमाम जो डीडी न्यूज़ के दर्शक हैं उनको दीपावली की शुभकामनाएं। इस समय हम जो है सीआरपीएफ के कैंप में है। यहाँ कैंप में आप देख सकते हैं कि तमाम जो सीआरपीएफ की जो सोल्जर हैं वो सोल्जर जो है यहाँ पर हैं। यहाँ पे एक मिनी भारत है रमा, अगर कहा जाए तो। कोई आसाम से है, कोई बंगाल से है, कोई हरियाणा से है, कोई बिहार से है, कोई वेस्ट बंगाल से, देश के अलग अलग हिस्सों से जो है यहाँ पर सोल्जर है, और वो जो है एकजुट होकर के यहाँ पर अपनी दिवाली मना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ लाइट कर रखी है।
लाइट के साथ साथ यहाँ पे दीपक जला रखे हैं और ये लोग जो है हंसी खुशी के साथ यहाँ पर अपनी दिवाली मना रहे हैं। साथ ही एक बात बहुत कहना चाहूंगा रमा, कि प्रधानमंत्री जो है हर दिवाली पे जो है 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से वो हर दिवाली पे जवानों के बीच में जाते हैं और कहीं ना कहीं इससे हमारे जो जवान हैं उनका मनोबल ऊंचा होता है। हमारे साथ यहाँ पर जो जवान है उनकी वाइफ है यहाँ पर, आप किस तरीके से जो है दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा, मैं पहली बार इधर एक्चुअली जैसे हम तो थोड़ा दूर है हमारा घर और आज तक हमने फोर्स ज्वाइन करने के बाद ऐसा सेलिब्रेशन करने का मौका नहीं मिला है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे सबको जो लिसनर्स को भी मैं मेरे तरफ से और हमारा परिवार की फैमिली की तरफ से भी और सबको हैप्पी दिवाली बताना चाहता हूँ। दूसरा चीज़ जैसे पोल्यूशन की रिलेटेड और प्लस कोविड की टेक केयर लेते हुए हमने जो सेलिब्रेशन किया उसमें कोई कमी नज़र नहीं आते हैं। सो वी आर एक्चुअली एंजॉइंग स्पेशली हैविंग दिस अपॉर्चुनिटी सेलिब्रेटिंग विद ऑल द जवान्स ऑल टुगेदर एंड इट्स ऑलमोस्ट द फर्स्ट टाइम फॉर मी एंड फॉर माई वाइफ दैट वी सेलिब्रेट टुगेदर ऑल्सो और इस तरह का मौका जो मिला है और बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। तो ये रमा इस समय सबसे बड़ा चैलेंज जहां एक तरफ कोविड-19 था वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण भी है। हमारे साथ कुछ जवान हैं, आप हमारे दूरदर्शन के माध्यम से देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी नमस्कार, सर्वप्रथम दीपावली की शुभकामनाएं। मैं इस यूनिट का मेडिकल ऑफिसर भी हूं, तो मेरे ऊपर जवानों की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्या है कि जहां काम करते हैं वहीं रहते हैं, हम काम करके घर नहीं जाते। हमको एक निश्चित समय पर छुट्टी दी जाती है, हम तब घर जाते हैं। तो हम कौन सा त्यौहार घर पे मनाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इस बार कोविड में हम लोग जो यहीं पर रह करके जो त्यौहार मनाते हैं, हर बार की परंपरा है, हम हर बार मनाते हैं। इस बार थोड़े नए नॉर्म्स हैं, जैसे जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है और भी जो हम लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको अपनाते हुए भी हम इसको मनाना छोड़े नहीं हैं। हम मनाएंगे और अच्छी तरह से मनाएंगे। और हम जो कोविड की लड़ाई, छत्तीसगढ़ की लड़ाई, कश्मीर की लड़ाई सब हम लोग लड़ रहे हैं, उसके साथ साथ कोविड की लड़ाई को भी लड़के हम लोग सफल होंगे। सीआरपीएफ का जो मोटो है वो यही है कि सीआरपीएफ सदा अजय, सीआरपीएफ कभी हारता नहीं और इसके इतिहास में है। तो ये कोविड की लड़ाई भी हम लोग अपने ढंग से इसको लड़के और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी रमा, तो जैसे कि इन्होंने कहा कि हम लोग जो है इस समय जो चैलेंज है, इस समय की जो दिवाली है, जहां एक तरफ कोविड-19 की है वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण का है और कहीं ना कहीं ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मास्क और सैनिटाइजर का जो है यहाँ पर पूरी व्यवस्था है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल है। विशाल, किस तरीके से आप सैनिकों का उत्साह देख रहे हैं यहाँ पर? देखिए उर्मिलेश, मुझे तो लग रहा है कि हम लोग मिनी इंडिया में खड़े हैं। एक छोटा भारत है यहाँ पर, अलग अलग स्टेट से है। अभी आपने सेकंड इन कमांड है उनकी वाइफ को दिखाया, मैं चाहूंगा कि एक बार वो आए और दिखाएं कि किस तरह से उन्होंने ड्रेस पहनी है। और इसको मणिपुर से हैं ये लोग, इसको फनेक कहते हैं। ये अपनी ड्रेस में आई हैं और कैसा लग रहा है आपको इस ड्रेस में दिवाली बनाकर, वो भी मणिपुर से दूर? बहुत अच्छा लगा है। हिंदी कमजोर है लेकिन जोश और जुनून में कोई कमी नहीं है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये तमाम जवान हैं जो यहाँ पर आके अफसरों के साथ, अफसरान के साथ एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल विशाल, और जिस तरह से आपने दिखाया है कि एक छोटा सा मिनी इंडिया, वहाँ पर अनेकता में एकता है, हिंद की विशेषता ये वहाँ पर दिखाई दे रहा है। और बेहद खूबसूरत बात जो सीआरपीएफ के इन जवानों ने कही है कि चाहे कश्मीर हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, किसी भी तरह की मुश्किल चुनौतियां हो, उन मुश्किल चुनौतियों में जिस तरह से हमने सभी बाधाओं को पार करके जीत हासिल की है, कोविड की जो चुनौती है और इसी तरह अन्य जो चुनौतियां हैं उनसे भी हम आगे निकलेंगे। हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन वक्त है सकल अब कोलकाता जाने का। यस, इनफैक्ट उर्मिलेश और विशाल के पास हम थोड़ी देर में दोबारा लौटेंगे, लेकिन अभी रुक करते कोलकाता का। अनिल ब्रातो इज जॉइनिंग अस लाइव फ्रॉम कोलकाता टू गिव अस अ सेंस एज हाउ द streets in Kolkata are lit up bright to celebrate Deepavali this year. Anil Brato, take us through the Diwali celebrations there in Kolkata. Yeah, Bhudo, you know, Sakal,
Sakal, mood of celebration is there, but it's a faded mood. As you know, the state is battling with the corona pandemic situation, and a clandestine ban has been issued on the use of firecrackers. Particularly this day is coinciding with the Kali Puja here in Bengal also. But starting from the High Court to Supreme Court and even in the National Green Tribunal had issued a clandestine ban on the issue of firecrackers. So as you see that the decorative lights are adorning here and there in every nook and corner of Kolkata. As you can see at my backdrop, decorative lights are dangling from one end to the other end of the street. But the thing is that people are largely choosing to remain confined in their homes. And what is particularly we find that this time, as it happened in the Durga Puja too, in the Kali Puja, all puja pandals has been declared as the containment zone. That's it, 5 meters from the pandals has been declared as a containment zone. And the thing is that what we largely see this time, that the car ride pandal hopping that we find this time. One thing is very sure, Anirudh, I'm sorry, I'll have to cut it short here because we'll come back to you in a moment from now. The corona pandemic hasn't really dampened the very spirit of Deepavali. Yes, precautions are important, they are necessary, and this is Diwali amidst all those precautions. And let's quickly dip in live to those visuals. This is 122 Battalion CRPF camp. My colleague Urmilesh and Vishal are there as we speak, and these are Diwali celebrations out there. We can go full frame live, and if our reporters are live with us, they can tell us how these celebrations are going on there. बिल्कुल, आप ये दृश्य देख सकते हैं जो हमारे जवानों का जोश है, उत्साह है और दीपावली को लेकर, दीपावली के संदेश को लेकर, सकारात्मकता को लेकर, और ये जो सकारात्मकता आपको दिखाई दे रही है, ये वो आधार है भावनाओं का जिसमें ये जज्बा मजबूत होता है कि पूरा देश हमारे साथ खड़ा है, पूरा देश हमारा परिवार है और पूरे देश से सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर मौजूद हैं जो पूरे देश की एक झांकी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और मिलेश, हमारे जवान किस तरह से जोश और उत्साह के साथ पूरे देश की झांकी दिखा रहे हैं यहाँ? जी रमा, बिल्कुल आप देख सकते हैं मेरे पीछे की जो दिवाली का जो त्योहार है, उस त्योहार को जो है हमारे जो सोल्जर हैं वो सोल्जर बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं और साथ ही जो है यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो है अपने घरों को भी ये लोग जो है बात कर रहे हैं, अपने घरों से दूर ये लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो इनका जो ये मिनी भारत जिसे कह रहे थे हमारे सहयोगी विशाल, तो देख सकते हैं आपकी एक मिनी भारत है जहाँ पर कि आसाम से और बंगाल से, हरियाणा से, बिहार से, तमाम जगहों से हमारे सहयोगी विशाल है। विशाल, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? Well, Urmilesh, on the festival everybody wants to be with a family, but here nobody is missing the family because CRPF is their family, it is their life, it is their discipline. They are all disciplined soldiers, and that is why you can see everybody is putting on a mask and they are maintaining social distance, but they all got so excited that they are dancing together, and I would ask them to maintain a bit of social distance. But today is the day for them to celebrate, to dance, because after COVID, this is the first major celebration. India is celebrating Diwali. Diwali is the festival of light. And as the saying goes, कुछ दिए तुम जलाओ, कुछ दिए हम जलाएं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएं. And following that, we all have to contribute. We have to fight the pandemic. The Prime Minister has been always with the armed forces, and it's a big day for them. Prime Minister was there on the borders with the soldiers, and here in Delhi they are all celebrating, they are all dancing. So let me speak to some of them. क्या नाम है आपका? सुदेश यादव. कहाँ से आप? हरियाणा से. अच्छा, आज सेलिब्रेट करके आप सीआरपीएफ के साथ, अपने लोगों के साथ कैसा लग रहा है आपको? दिवाली अच्छा फील हो रहा है, मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ. मतलब हर देश के लिए मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ. कुछ लोगों से और मैं बात करूंगा. कहाँ से आप? मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और हमारे सीआरपीएफ परिवार है. जैसे हम घर पे नहीं रहते हुए भी हमें ऐसा महसूस नहीं होता कि हम अपने परिवार के साथ दिवाली नहीं मना रहे हैं. सीआरपीएफ हमारा घर परिवार है, उसी के साथ हमने दीवे लगा के, लाइटिंग लगा के, जैसे हम दिवाली को घर पे सेलिब्रेट करते हैं ऐसे ही हमने यहाँ पे अपने कैंप में सेलिब्रेट किया हुआ है. So there you heard. The ladies are also there. I would also, there's one more lady. Let's talk. She is wife of a doctor. So let's ask her. आप कहाँ को बिलोंग करते हैं? मैं रांची की हूँ. रांची, झारखंड से आई हैं. मैं इनसे बोलूँगा थोड़ा आगे आ जाए. आप इतनी रांची से इतनी दूर आ गए दिल्ली में, कैसा लग रहा है आपको आज सीआरपीएफ फैमिली के साथ आप बना रहे हैं? I'm feeling
very proud to be a member of CRPF. And basically I'm also a dietitian. तो अभी इस कोरोना में the dietary guidelines जो भी होता है, मैं अपने husband, he is a doctor and I'm a he is curing through medicine and I am curing through diet. तो जो भी डाइट होता है कोरोना को फाइट करने में, मैं बेसिकली वो साइड डाइट देती हूँ. So there you heard that she is a dietitian, doctor's wife, and she is also giving good advice to all these people how to have a nutritious diet, and the ladies are also enjoying. So बिल्कुल विशाल, जिस तरह से आपने बताया कि इनका उत्साह दिखा रहा है, किस तरह से दीप आगे जले, ज्योत प्रकाश की आगे बढ़े, और वही प्रकाश की ज्योत आगे दिखाते हुए हमारे ये जवान नजर आ रहे हैं. बेहद खूबसूरत, बेहद उत्साहपूर्ण, जज्बा को बढ़ाने वाले दृश्य. और अब आपको सीधे मुंबई ले चलते हैं, देश की आर्थिक राजधानी, जहां पर मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में बता रही हैं हमारी संवाददाता श्यामा. Well, Shama, I believe the Mahura trading was scheduled to start at 6:15 to 7:15. Am I right there? And we also, in fact, cut across live reaction coming in from one person from there. Give us the sense as to how this Mahura trading is going on, the significance of it, considering pandemic time. We want to show our viewers why this Mahura trading this time around is very, very, special for Mumbaikars also. Well, I'll start with, the visuals of all the Muhurat trading which is going on over here. If you see, usually these visuals over here, these computers and chairs over here is fully crowded with all the traders and their family members. But this time around, it's a pandemic time and people are taking all the precautionary measures. There are hardly 5 computers over here and only 3 people are currently trading. And earlier also when it started, there were only 2 people who were trading. So let's try and talk to the traders. What do they think and what the markets and how the markets are reacting. Sir, बताइए किस तरीके से आप ट्रेड कर रहे हैं और कैसा मार्केट रिएक्ट कर रहा है? अभी तो फिलहाल बाजार काफ़ी ऊपर हो चुका है, 350 पॉइंट ऊपर है. अभी हम लोगों ने ITC लिया, SBF परचेस किया. अभी तो सब ये खरीदने का टाइम है. अभी कोई टेंशन, अभी कोई उम्मीद नहीं है कि बाजार में कोई मंदी आने का चांसेस है. मंदी चांसेस नहीं है? नहीं मैडम, अभी तो कोई चांस नहीं है मंदी आने का. और ऐसे भी कहा जाता है कि आज जो खरीदते हैं वो मोस्टली बाजार में खरीदी ही होती है, बिकवाली नहीं होती है. हाँ, आज तो सब लोग आते ही है बाजार में, शेयर खरीदने के लिए आते सब लोग. हम लोग भी आए खरीदने के लिए. So the markets are 300 points up when it started, and we'll talk to another trader as well, what he's thinking, what he's buying. Sir, आप बताइए किस तरीके से आप देख रहे हो मार्केट्स को और कौन से सेक्टर्स आपको लग रहे हैं कि अच्छे सेक्टर्स हैं ये? The trend is positive and most of the scripts are trading at high rate. Very few are fluctuating, and there is a positive move in the future that we will be having a better Sensex and other relative indexes also will be rising very deeply, because it started at 300 in the beginning and currently also it is about 250, so it is likely to sustain its positive trend, and in future also I think the trend will continue. And most of the scripts in FMCG, the cement sector, the infrastructure, the recent announcement by the government in the infrastructure and the other sectors will boost the market traders and it will help the trading sentiments. So the year to follow is all happy, bright and positive. Yeah, I think it is going to be very positive in future, because most of the scripts have shown positive results also in the first quarters also. Very few of them have shown, but I think they will recover as the corona effect is getting diluted, and we will be getting a better results in next quarter also. Okay. So lots of hopes over here, lots of positiveness over here, and we are also seeing the trend in the market that the markets are really in in trading up 300 points, 250 points, and that is going to sustain. The traders are hopeful of that, and yes, the year to follow, that is somewhat which is to be that will begin from tomorrow, is also
everyone is hopeful that that year also will be full of hope, brightness and positiveness. जी शमा, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कोविड के बावजूद इतना पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई दे रहा है, जो निवेशक हैं उनमें काफ़ी सकारात्मकता दिखाई दे रही है और काफ़ी एक होपफुल ट्रेंड जो है वो दिखाई दे रहा है, तो जिस तरह से सरकार ने कदम उठाए हैं, चाहे निवेश को लेकर उठाए हों, आर्थिक गतिविधियों को लेकर उठाए हों, और तमाम अगर अर्थ जगत के देखते हैं तो हर तबके, छोटे से लेकर बड़ा तक, सबके लिए जो है एक अलग तरह का पैकेज वित्त मंत्री लेकर आई, तो उसका असर ये दिखाई देता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जब हमने देखा शुरुआती दौर में, जब कोविड का असर बहुत ज़्यादा होने लगा था, बहुत जल्द ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर में इंश्योर किया कि कोई भी इससे ज़्यादा प्रभावित ना हो, और कई सारे ऐसे जो डिसीजंस थे या जो कई सारे ऐसे कह सकते हैं एक तरीके से आश्वासन थे लोगों के लिए, वो उन्होंने जाहिर किए। और अब कह लीजिए कि जो सबसे गरीब तबके का भी इंसान होता है, क्योंकि अंत्योदय गवर्नमेंट का मोटो है, तो वो वहां तक में भी खाना कोई भूखा ना रहे, भूखा ना सोए, ये इंश्योर किया गया। तो जिस तरीके से हमने शुरुआती दौर पे देखा कि मुफ्त अनाज मिल रहा था, कई सारी जगहों पर उसे एक्सटेंड भी किया गया। 5 किलो अनाज हर फैमिली मेंबर को मिल रहा है। उज्ज्वला गैस के तहत में गैस भी फ्री दी जा रही है। साथ ही कई सारे जगहों पर भी राशन कार्ड की व्यवस्था कर दी गई कि जो राशन कार्ड आप यहाँ पर हैं और कोई और माइग्रेटेड है तो वो वहां पे भी ले सकता है। तो कई सारी सुविधाएं, कई सारे ऐसे डिसीजंस गरीब तबकों के लिए लिए गए। साथ ही कॉर्पोरेट जगत की अगर हम बात कर ले या इंडस्ट्री की बात कर ले, तो उनके लिए भी कई सारे जो डिसीजंस हैं वो रोल आउट किए गए, ताकि उनके भी बिजनेसेस हैं जो एमएसएमईज हैं, हमारी बैकबोन कहलाते हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पूरे एक तरीके से कह सकते हैं कि भारतीय इकोनॉमी की रूट बैकबोन कहलाते हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए भी कई सारे डिसीजंस लिए गए। इसके अलावा अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी बात करें तो वो भी भारतीय गवर्नमेंट है जो उनके साथ में टैंडम में काम कर रहा था, और उसके साथ में भी कई सारे डिसीजंस लिए गए, जिसमें से जो कह सकते हैं कि एक जो 3 महीने तक का आपका अगर आप लोन है, आपके पास में ईएमआई है, तो 3 महीने तक का उसका जो समय सीमा था वो बढ़ा दिया गया। उसके बाद में भी वो फिर से और बढ़ा दिया गया। तो एक तरीके से कई सारे डिसीजंस बार बार उसे देखते गए, रिवाइज करते गए, और जो डिसीजंस है फाइनेंस मिनिस्टर की ओर से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए गए। और अभी जो आपने लाइव में सुना था आशीष चौहान को, वो बीएससी के हेड है यहाँ पे, उन्होंने भी बताया कि कई सारे डिसीजंस गवर्नमेंट के लेने की वजह से ही का एक रीजन है कि आज कई सारे सेक्टर्स, जिसमें एक स्टॉक मार्केट्स भी कह लीजिए, वो एक पूरी तरीके से विश्वास के साथ में खड़ा है। आम आदमी भी जो है वो विश्वास के साथ खड़ा है कि कोविड का जो असर है वो भी हम अच्छे तरीके से the best part is that the NSE BSE, that 1 hour special Muhurat trading session which is currently underway, has actually started on a very positive and a very, very optimistic note. Signs to come, good things are in store. Many thanks, Shama, and your team for joining us. And let's quickly, before we wrap up this special broadcast, once again, रुक करते हैं हम Northeast का. Let's go to Guwahati, where our colleague Duina is with us live. And I believe she's got these children there, and today it's Children's Day as well. बिल्कुल, बाल दिवस है। दुइना, किस तरह से बाल दिवस और दीपावली की दोहरी खुशियां मना रहे हैं बच्चे? जी बिल्कुल, मैं अभी जहाँ हूँ गेम्स विलेज, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट आज 600 दियाज एक साथ जलाए हैं, और मेरे साथ काफ़ी सारे बच्चे आप लोगों ने देखे हैं। ये लोग चिल्ड्रंस डे भी एक साथ मना रहे हैं। सब बच्चों ने दिया भी जलाया है। तो कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे? आज दिवाली भी है, चिल्ड्रंस डे भी है, सब तो विश करना चाहिए। ओके, तो दुइना क्या बोलोगे आप? मैं पहले तो सबको हैप्पी दिवाली एंड सब बच्चों को चिल्ड्रंस डे विश करना चाहूँगी, और ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि इस साल सब क्रैकर्स को बैन कर दिया गया है, तो मतलब इस बार ग्रीन दिवाली बना रहे हैं सब कोई, सो पोल्यूशन भी कम है पहले से। जी दुइना, आपसे ये भी जानना चाहेंगे किस तरह सब लोग मास्क पहन के जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज सबको एक बेहद सकारात्मक संदेश दिया, हमारे सैनिकों के लिए, हमारे जवानों के लिए जो सरहद पर इस वक्त भी निगहबानी कर रहे हैं, जब हम अपने घरों में त्योहार मना रहे हैं, एक दिया सैनिकों के नाम जलाने के लिए, बच्चों में किस तरह से ये संदेश गया है?
जी बिल्कुल, इन लोगों के साथ भी बात किया था तो इन लोगों ने कहा है कि सोल्जर के लिए, जो लोग हम लोग के लिए, देश के रक्षक के लिए बॉर्डर्स में हैं, उन लोग के लिए दिया जलाने जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो अपील किया है लोग, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि दिया एक सोल्जर्स के लिए, दिया जलाने के लिए, तो ये मैसेज आप किस तरह से लेते हो? कि वो लोग जैसे कि रक्षा करते हैं हमारे बॉर्डर्स में खड़े होके, तो वैसे हमें उनका सम्मान के लिए हम लोग दिया स्लाइड करते हैं, अपने घरों में सजाते हैं, और जैसे यहाँ पे हम लोग ने सजाया है रास्ते में। सो यही कहना चाहूँगी मैं। जी रमा, आपने देखा किस तरह बच्चों के बीच में जो एंथुजियाज्म है, जो एक्साइटमेंट है दिवाली को लेके, चिल्ड्रंस डे को लेके, ये बहुत एक पॉजिटिव साइड है। हाँ, एमिड्स कोविड-19 सब लोग प्रोटोकॉल्स भी मेंटेन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस भी है, मास्क भी पहन रहे हैं, तो इस तरह से इस बार थोड़ा अलग तरीके से ही दिवाली मनाया गया है। बिल्कुल अलग तरीके से मनाई जा रही है, पूरे कोविड प्रोटोकॉल के साथ मनाई जा रही है। और बच्चे जिस तरह से प्रधानमंत्री के संदेश को बच्चों ने कहा है संकल्प के रूप में कि हम दिया जलाएंगे, वो बेहद महत्वपूर्ण है। और सकल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 4 लाइनें इसमें बेहद इस समय प्रासंगिक होगी, जो उन्होंने कही है कि जब प्रेम के दीपक जलते हों, सपने जब सच में बदलते हों, जब लहके फसले चावों की उत्साह की आभा होती है, उस रोज़ दिवाली होती है। और वो उत्साह की आभा हमने देखा कि तमाम क्षेत्रों में दिखाई दे रही है, चाहे हमारे जवान हो, सीआरपीएफ के जवानों का उत्साह हमने दिखाया, छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें बेहद उत्साह है, इसके अलावा व्यापारी वर्ग उसमें बेहद उत्साह है। और जो मुहूर्त ट्रेडिंग बेहद पॉजिटिव ट्रेंड के साथ शुरू हुआ है, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। Yes, absolutely. On that optimistic note, once again he is wishing all the viewers of National News Broadcaster Doordarshan a very happy, a very prosperous Diwali. This year has been very tough for all of us, but let's hope that this Diwali ushers in that very bright light that we have been waiting for. And with that, let's quickly wrap it up. But remember, masking is important, social distancing is important. You can have your sweets, but don't forget to mask up. Mask up India. Thank you for tuning in. Namaskar. बिल्कुल मास्क जरूर लगाएं, मास्क हमेशा अपने साथ रखें। और जिस तरह से सकल ने कहा है कि दिवाली का मतलब ही है, जिस तरह से इस वक्त जो टफ चैलेंज था कोविड का और चुनौतियों पर पार पाना, अंधकार को दूर भगाना, प्रकाश की ओर जाना सकारात्मकता के साथ, यही दिवाली का संदेश है। और इसी दिवाली के संदेश को एक जिम्मेदारी के साथ मास्क लगाकर आप सबको निभाना है। तो मास्क जरूर लगाएं, दिवाली मनाएं, अपनों के साथ मनाएं, खुश रहें, खुशहाल रहें, दिवाली की खुशियां सब में बांटें, दिवाली आपके लिए शुभ हो। इसी के साथ लेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार।